Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you all are fine. I am Mrs. Nazmatar, Assistant Professor of English from Government Degree College, DMR, Bahawalpur. I am presenting my lecture for class 4th year BSc, subject English compulsory. Today we will read second prose essay, The Last Lesson by Alphonse Daudet. Here is your book, A Selection of English Prose. स्टूडेंट्स, हम इस बुक में से 50 मार्क्स का पर्चा तैयार करेंगे। लिटरेचर पोर्शन कहलाता है। सवाल नंबर 1, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के जवाब देने होंगे। 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। सवाल नंबर 2, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पेयर क्वेश्चन करना होगा, यानी 10 मार्क्स के 2 सवाल। फिर सवाल नंबर 3, ये भी पेयर क्वेश्चन होगा। 10 मार्क्स के आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे। इस तरह से आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करने हैं। इसके साथ ही अगला पोर्शन जो होगा वो होगा ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर के पोर्शन के भी 50 मार्क्स होंगे। ग्रामर का लेक्चर आपको एक दिन अलग से देंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट our second prose essay, The Last Lesson by Alphonse Daudet. Introduction of the writer. Alphonse Daudet, 1840 to 1897, French novelist and short fiction writer, is famous for his simple, lucid narrative essays. He still remains today a popular short story writer in France and overseas. All his work have been translated in English. Now come to the theme of the last lesson. The Last Lesson, one of his most famous prose work, is gently ironic and at the same time patriotic tale of a schoolboy who learns too late the value of his native language. It is a story of national pride. The last lesson shows that our native language is the storehouse of our social and cultural pride. It is a patriotic tale of a French boy. Now come to the historical background of the essay. The Last Lesson is written in the background of Franco-German War, 1870 to 1871. The Prussian German won the war and imposed their language on the French. The German ordered that teaching in the school of Alsace and Lorraine in France shall be given in the German language. Here you can see the Alsace and Lorraine city on the map. Here is the tale of the schoolboy. The last lesson. Come to the text, page number 16. That morning it was quite late before I started for school, and I was terribly afraid I should be scolded. For Monsieur Hamel had told us that he would question us upon participle, and I did not know the first thing about them. For a moment I thought of escaping from school and roving through the fields. In first paragraph, he is saying the boy, इस सुबह स्कूल में रवाना होने से पहले से बहुत देर हो चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा था कि उसका टीचर मिस्टर हैमल आज उससे पार्टिसिपल के बारे में सवाल पूछेगा और उसे पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसका ख्याल था कि वो आज स्कूल से भाग जाए और खेतों में घूमे फिरे। The day was so warm, so clear. The blackbirds were whistling on the outskirts of the woods. In Rupert meadows, behind the sea mill, the Prussians were drilling. All these things were for a moment attractive to me. Then the rule for the use of participle, but I mustered up strength to resist temptation and hurried on to the school. कहते हैं कि दिन बहुत साफ था। ब्लैक बर्ड्स, कोयल, कौवे इर्द-गिर्द-नवा में गा रहे थे और रेपर्ट मेडोज़ में आरक मशीन के पीछे जो जर्मन हैं वो मशकें कर रहे थे और ये तमाम चीज़ें उसे पार्टिसिपल के असूलों से
बढ़कर अट्रैक्टिव महसूस हो रही थीं और उसका स्कूल जाने को जी नहीं चाह रहा था। उसने अपनी तमाम ख्वाहिशात को दबाने की कोशिश की और हिम्मत की कि वो स्कूल जाए, और उसने स्कूल जाने के लिए जल्दी की। As I reached the town hall, I saw a group of people. They loitered before the little grating, reading the placard posted upon it. For 2 years, every bit of bad news had been announced to us from the grating. There were there we read that battle had been lost, with requisition made. There we learned what order had issued from headquarters, and though I did not pause with the rest, I wondered to myself, what can be the matter now? जब मैं टाउन हॉल पहुंचा तो उसे एक ग्रो नज़र आया जो जंगले के सामने फिर रहा था और इश्तेहारात पढ़ रहे थे। 2 साल तक उसे इसी जंगले के सामने हर अच्छी बुरी खबर के पढ़ने का इत्तफाक हुआ या ऐलान होता रहा कि हमने कौन सी जंगें हार दी और अब हेडक्वार्टर से किन चीज़ों की ज़रूरत के अहकामात जारी हो रहे थे। और चूँकि इन लोगों के साथ उसे रुकना बेहतर ना लगा कि आज उसे हैरत हो रही थी कि यह सब में क्या मामला है। तो आई डिड नॉट पॉज, मैं वहाँ नहीं रुका, लेकिन मुझे हैरत थी कि आज सब कुछ क्या हो रहा है। उसे स्कूल जाने से बट बी द मैटर नाउ कि आज मामला क्या है। एज आई रीच अक्रॉस द स्केयर, whether the blacksmith, who in company with the apprentice was absorbed in reading the notice, exclaimed, "Not so fast, child, you will reach your school soon enough." उसका यू विल रीच योर स्कूल एनफ, कहते हैं कि इतनी तेज़ भागने की ज़रूरत नहीं है, तुम परेशान ना हो और तुम जल्द ही अपने स्कूल पहुंच जाओगे। और उसके पिछले पैराग्राफ में वो कहते हैं, एज आई रन अक्रॉस द स्केयर, स्केयर कहते हैं खुले मैदानों को। जब मैं एक मैदान की तरफ भागा, वहाँ ब्लैक स्मिथ जो था वो अपनी कंपनी के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जो है वो रीडिंग कर रहा था उसने उन्हीं नोटिस की, और वो स्कूल के लिए भागा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आई बिलीव he was making a game of me, as I was quite out of breath when I entered Monsieur Hamel's mold में। कहता है कि मुझे लगता है वो शख्स मुझसे मजाक कर रहा था। एंड कहता है कि आई वॉज क्वाइट आउट ऑफ ब्रेथ, कि मुझे बिल्कुल सांस फूला हुआ था जब मैं मिस्टर मॉन्सर हैमल यानी अपने टीचर्स की सल्तनत में दाखिल हुआ, यानी मैं अपने टीचर की क्लास के पास जब दाखिल हुआ। Now, at the beginning of the school session, there was usually such an uproar that it could be heard as far as street। ने कहा कि जब पढ़ाई शुरू होने से पहले या सेशन शुरू होने से पहले आम तौर पर बहुत ज़्यादा शोर हुआ करता था जो कि स्ट्रीट के बाहर से सुना जा सकता था। डेस्क वर ओपन एंड शट, डेस्क खोले और बंद किए जाते थे। लेसन रिसाइटेड एट द टॉप ऑफ आवर वॉइसेस, all shouting together, each of us stopping his ear that might hear better. Then the master's big ruler would descend upon his desk and he would say, "Silence." फिर कहता है कि जी हम बहुत बुलंद आवाज़ में सबक पढ़ते जाते थे, सब इकट्ठे बोलते, हम सब एक एक करके अपने कानों में ज़ोर से उंगलियां दबा देते और ताकि हम बेहतर तौर पर सुन सकें सर की बात। पर बहुत शोर होता था। फिर मास्टर साहब बड़ा सा डंडा डेस्क पर बजाते और कहते, खामोशी। I counted upon making my entrance in the midst of the usual babble and reaching my seat unobserved. But upon this particular morning all was hushed. Sabbath stillness regained. Through the open window I could see that my comrade had already taken their seat. I could see Monsieur Hamel himself passing back and forth, his formidable iron ruler under his arm। कहता है कि मेरा दाखिला इस बात पर मुनहसर था कि मैं इसी शोर में हस्बे मामूल अपनी अनदेखी जगह पर जाकर बैठ जाऊं, लेकिन आज ख़ास बात यह थी कि सब कुछ खामोश था और एक ख़ास खामोशी छाई हुई थी। सैबत स्टिलनेस कहते हैं चर्च में होने वाली एक ख़ास खामोशी को, जिस तरह से गिरजाघरों में इबादत के वक्त की जाती है। खिड़की जो थी वो मैं खुली से देख सकता था कि मेरे साथी जो थे वो अपनी सीट पर, अपनी नशिस्तों पर बैठ चुके थे। मिस्टर हैमल आगे पीछे फिर रहे थे क्लास में, और बगल में उन्होंने अपना वो डंडा, खौफनाक डंडा कहता, फॉर्मिडेबल आयरन रूलर एंड खौफनाक डंडा जो है वो दबाया हुआ था।
I must open the door. I must enter in the midst of that deep silence. I need not to tell you that I grew red in the face and terror seized me. और मुझे इस सारी खामोशी के अंदर क्लास में दाखिल होना था और आई नीड नॉट टेल यू दैट आई ग्रू रेड कि मैं बता नहीं सकता किस तरह से मेरा चेहरा सुर्ख हुआ था और खौफ ने मुझे जकड़ा हुआ था. But strangely enough, as Monsieur Hamel scrutinized me, there was no anger in his gaze. He said very gently. वो कहता है लेकिन बहुत हैरान कुन बात ये थी कि मिस्टर हैमल ने मुझे बगौर देखा लेकिन उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था और उन्होंने बहुत शाइस्तगी से कहा, टेक योर सीट क्विकली माई लिटिल फ्रेंड. Here first time we learn the name of that boy. We were going to begin without you. कि लड़के आराम से बैठ जाओ हम तुम्हारे बगैर ही सबक शुरू करने वाले थे. I climbed over the bench and seated myself, but had covered when I had covered a little from my stride, I noticed that our master had donned his beautiful green frock coat, his finest frill shirt. कहता है जैसे ही मैं अपने बेंच पर पहुंचा वहां पर बैठ गया तो सबसे पहले मैंने ये बात अपने खौफ पर काबू पाया तो मैंने इस बात को नोटिस किया, खबरदार हुआ मैं इस बात से कि आज हमारे टीचर ने बहुत ही खूबसूरत ग्रीन कलर का फ्रॉक का कोट पहना हुआ था और वो बहुत बेहतरीन लिबास में थे. उन्हें फाइनेस्ट फ्रिल वाली शर्ट पहनी हुई थी जिसके ऊपर बहुत उम्दा किस्म की फ्रिल लगी हुई थी एंड हिज एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक शर्ट क्लॉथ और उन्होंने अपने सर पर एक एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क रेशमी टोपी पहनी हुई थी विच ही वोर only on inspection days or upon those occasions when the prizes were distributed. Moreover, an extraordinary solemnity had taken possession of my class, but the greatest surprise of all came when my eyes fell when the benches at the farther end of the room, usually they were empty, but upon this morning the villagers were seated, they were also solemn as ourselves. तो कहते हैं कि मैं जब क्लास में दाखिल हुआ तो एक तो मुझसे ये पता चल जाता है कि उस्ताद साहब ने जो कपड़े पहने हुए हैं जो लिबास वेतन किया हुआ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात में पहना जाता था जब इंस्पेक्शन होती थी मुआयना किया जाता था या फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के डेज होते थे. आज जो हालात हैं जो खामोशी है संजीदगी छाई हुई है क्लास में वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है और उसके लिए इंतहाई सरप्राइज़ की बात ये थी कि इस वक्त जो उसकी जब उसने जब देखा कि क्लास के जो बैक बेंचेस हैं वो अमूमी तौर पर खाली होते थे लेकिन आज सुबह वहाँ पर पिछली नशिस्तों पर जो है वो विलेजर्स बैठे हुए थे. दे सेट ओल्ड हॉजर देयर सेट ओल्ड हॉजर विद हिज 3 cornered hat. There sat the venerable mayor, the aged carrier, and the personage of importance. All of us visitors seemed sad, and Hauser had brought with him an old primer, chewed at the edges. It was wide open upon his knees, his big spectacle responding upon his pages. उसने देखा, हैरानगी की बात थी कि मैंने देखा कि आज मुख्य मेहमान क्लास में मौजूद थे. एक तकोनी हैट पहने हुए बूढ़ा सर हेमल बैठा हुआ था और एक कैरियर मैन बैठा हुआ था और बहुत सारे और मुलाकाती मेहमान मौजूद थे. वो तमाम गमगीन थे और एक उस बूढ़े शख्स के पास एक पुरानी किताब थी जिसको प्राइमर कहते हैं. वो उसकी घुटनों पर खुली हुई थी और उस पर उसकी ऐनक रखी हुई थी. While I was wondering all, while I was wondering all these things, Monsieur Hamel had taken his seat at the same grave and gentle tone in which he had greeted me. He said to us, कहते हैं अभी मैं इन सब हालात के बारे में परेशान हो रहा था, सोच रहा था, हैरान हो रहा था कि मॉन्सर हैमल अपनी नशिस्त पर बैठ गए उसी शाइस्ता और इंतहाई शफकत भरे अंदाज में जिसमें उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया था और कहा, My children, this is the last day I shall teach you. The order has come from Berlin that henceforth in the school of Alsace and Lorraine all instruction shall be given in the German tongue only. Your new master will arrive tomorrow. Today you hear the last lesson you will receive in French, and I beg you will be more attentive. In this paragraph कहते हैं कि आज आपका लास्ट लेसन है फ्रेंच में
और अल्ज़ैस और लॉरेन में इंस्ट्रक्शंस यानी हदायत आ चुकी हैं कि जर्मन ज़ुबान पढ़ाई जाएगी। यूर न्यू मास्टर, आपका नया टीचर जो है वो कल आ जाएगा। आज आप फ्रेंच में अपना आखिरी सबक जो है वो पढ़ेंगे और इंतहाई तवज्जो से पढ़िए। My last French lesson, and I scarcely knew how to write. I should never learn. My education must be cut short. How I grudged at the moment, every minute. I had lost every lesson I had missed for the sake of hunting birds' nest or making slides upon the Saar. And those books which were a moment before were so dry and dull, so heavy to carry. My grammar, my Bible history seems now to wear the faces of old friends. वो कहता है कि अभी तो मैंने फ्रेंच को लिखना पढ़ना भी नहीं सीखा था और मेरी पढ़ाई का आखिरी दिन आ गया और मेरी पढ़ाई ख़त्म होने जा रही है। उसे इस बात का बहुत रंजिश महसूस हो रही थी और उसने कहा कि मैंने अपना तमाम वक्त जो है वो घोंसले पकड़ने, घोंसलों में से परिंदे पकड़ने और स्लाइड्स बनाने सार पर गुजार दिए। और वो तमाम किताबें जो थोड़ी देर पहले उसे बहुत खुश्क महसूस हो रही थी, बहुत भारी और डल लग रही थी, ग्रामर की बुक और बाइबल हिस्ट्री की बुक, एक लम्हे को ही उन्होंने दोस्ताना फेसेस जो हैं वो उसके लिए ओढ़ लिए थे। वो उसके अपनी दोस्त महसूस हो रही थी। बट आई कुड नॉट बियर टू बिड फेयरवेल। उसने कहा मुझे तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं किसी तरह से खुदा हाफिज कह सकूँ। इट वॉज विद देम एज विद मॉन्सर हैमल। The thought that he was able to leave, that I should see him no more, made me forget all the blows of his ruler and many punishment I received. एक लम्हे के लिए मुझे वो तमाम ज़रबें भूल गईं, ये सोचते हुए कि मैं मिस्टर हैमल जो हैं वो अब यहाँ पर नहीं होंगे। वो मैं तमाम सज़ाएं भूल गया जो कभी उन्होंने मुझे दी थी। Poor man, it was in honor of that last session that he wore arrayed his finest dress grab, and now I began to understand why the villagers had gathered at the back of the classroom. Their presence, such as a moment, seems to express a regret that they had not visited that schoolroom often. It was their way of telling about our master. They thanked him for the 40 years of faithful service and desired to pay their respect to the last whose empire was departing. वो कहता है कि पुअर मैन से मुराद यहाँ है वो टीचर। ही वॉज पुअर टीचर यानी बेचारा उस्ताद। इट वॉज ऑनर ऑफ दैट लास्ट लेसन यानी आज के लास्ट सबक के एहतराम में सर ने इंतहाई खूबसूरत इतवार का लिबास ज़ेबे तन किया था। अब उसे समझ आ रही थी कि सर ने खूबसूरत लिबास क्यों पहना और हमारे आज के स्कूल में बूढ़े विलेजर्स क्यों आए, उनके यहाँ पर मौजूद होने की वजह क्या थी। और वो आज ख़ास तौर पर वो कहते हैं इसके क्यों आए थे, कितने साल सर ने सर्विस की थी, 40 साल तक बेलौस खिदमत की थी। उसको थैंक पेश करने के लिए वो आज सब लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे कि वो अपने उस्ताद को बेहतरीन तरीके से थैंकफुल हो सकें, हर एक को कुछ अपना ग्रेटिट्यूड पे करें। As I was busied with these reflections, when I heard my name called, it was not my turn to recite. What would I not have given them had I been able to respect from beginning to the end that famous rule of the use of participle, loudly, distinctly, and without a single mistake, but I became entangled in the first few words and remained standing at the seat, swinging from side to side, my heart swelling. I dared not to raise my head. Monsieur Hamel was addressing me. उसने कहा मैं अभी इन ख्यालात में गुम था, अभी मैं सोच ही रहा था तो मैंने अपने नाम के पुकारे जाने की आवाज़ सुनी और अब मेरी बारी थी कि मैं अब सुनाऊं, रिपीट करूं शुरू से लेकर आखिर तक तमाम मशहूर पार्टिसिपेल के जो असूल थे, ऊंची आवाज़ में बगैर किसी गलती किए। लेकिन उसने कहा बट आई बिकेम इंटेंडेड, मैं तो पहले ही अल्फाज में उलझ कर रह गया और वहीं पर अपनी सीट पर खड़ा रहा और मेरा दिल जो है वो फूलने लगा और वो थोड़ा परेशान हो गया। और मिस्टर हैमल ने उससे खिताब किया,
I shall not chide thy my child friends. The punishment will be granted enough, so it is. We say to ourselves each day, but I have uh, but I have time enough, I will learn tomorrow. And now see what result, as it ever been the greatest misfortune of our Alsace, that he was willing to put off learning till tomorrow. वो कहते हैं कि मैं आज आपको नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रांस, मैं आपको कोई सज़ा नहीं दूंगा, बहुत सज़ाएं हो गई, हर दिन जो सज़ा मिलती थी वो हो चुकी है, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती रही है कि पढ़ने का काम कल तक मुलतवी कर दिया। शी से मुराद पूरी वो लोग हैं वहाँ के रहने वाले अल्जाज के, कि उन्होंने पढ़ने का काम मुलतवी कर दिया और विलिंग टू पुट ऑफ लर्निंग टुमारो। पेज नंबर 19. And now these foreigners can say to us, and justly, what you profess to be Frenchmen and can neither speak nor write your own language. And in all this, my poor friends, you are not chief culprit. Each of us has something to reproach himself with. वो कहता है कि अब गैर मुल्की जो जर्मन हैं वो वजह तौर पर कह सकते हैं कि तुम फ्रांसीसी होने का तो दावा करते हो, ना तो आपको लिखना आता है ना आपको पढ़ना आता है। ऑल इज दिस माई पोर फ्रेंड्स, के बेचारे फ्रेंड्स बच्चे, तुम परेशान ना हो कि आप ही सिर्फ कल्प्रिट नहीं है, सिर्फ आप ही का कसूर नहीं है। ईच ऑफ अस, हम सब जो हैं वो जो इस बात के कसूरवार हैं, हम सब जो कुछ ना मुजरिम हैं इस चीज़ के कि हमने आपको सही तरह पढ़ाया नहीं है। Your parents have not showing enough anxiety about having you educated. They prefer to see you spinning or tilling the soil, since that brought them in a few more saws. And have I nothing with which to reproach myself? Did I not often send you to water my garden when you should have been at your task? And if I wished to go trout fishing, was my conscience in the least disturbed when I gave you a holiday? मैं तुम्हें तालीम दिलवाने के लिए तुम्हारे वालिदैन ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं रहे, उन्होंने ज़्यादा फ़िक्रमंदी का इजहार नहीं किया, इस बात को तरजीह दी कि आप सूत काटते रहें, खेतों में हल चलाएं, सिर्फ इसके बदले में उन्हें चंद पैसे मिल जाएं। मगर मैं आपको कुछ नहीं कह सकता कि मैंने भी क्या किया, कि अक्सर मैंने आपको भेजा कि आप मेरे स्कूल में पौधों को पानी दें, या कभी मैं कोई मछली पकड़ने जाता, ट्राउट फिशिंग के लिए जाता, तो आपको छुट्टी दे देता और मुझे अपने ज़मीर पर कोई खलिश महसूस नहीं होती थी। Once, topic leading to another, Monsieur Hamel began to speak of the French language, saying it was the shortest, clearest, most beautiful language in the world, which we must keep as our heritage, never allowing it to be forgotten, telling us that when a nation has become enslaved, she holds the key which should unlock his prison as long as she preserves his नेटिव लैंग्वेज। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पैराग्राफ है इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन में भी काम आएगा। कहते हैं ऑन द टॉप, एक टॉपिक से हम दूसरी टॉपिक की तरफ जा रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बताया, मिस्टर हैमन ने, हमारे टीचर ने, कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बहुत क्लियर आइडियाज़ दिए हैं उसने इस पैराग्राफ में। कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो इंतहाई मजबूत तरीन, इंतहाई साफ, इंतहाई शफाफ और ख़ूबसूरत लैंग्वेज है, जिसे हमारा वर्से के तौर पर बरकरार रखना चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ुबान को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब कोई कौम, कहते हैं, ग़ुलाम हो जाती है तो उनके पास सिर्फ एक ही कुंजी होती है अपनी जेल का दरवाज़ा खोलने के लिए, जब तक वो अपनी मुकामी ज़ुबान यानी नेटिव लैंग्वेज को बरकरार रखते हैं या अपनी नेटिव लैंग्वेज को ज़िंदा रखते हैं। Then he took a grammar and read our lesson to us, and I was amazed to see how well I understood. Everything he said seemed so simple, so easy. I had never, I believe, listened to anyone as I listened to him at that moment, and never before had he shown so much patience in his explanation. वो कहता है कि जैसे ही सर ने हमें ग्रामर पढ़ाना शुरू की तो मैं सख्त हैरान हुआ, मुझे शदीद हैरानी हुई कि मुझे सबक बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा था। जो बात बहुत सादा और सिंपल लग रही थी और मुझे फौरी तौर पर समझ आ रही थी, इससे पहले कभी इतनी बेहतर तौर पर उसे समझ नहीं आई थी।
और सर भी आज इंतहाई बुर्दबारी से सब्र का तहम्मुल का मुजाहरा फरमा रहे थे और बहुत पेशेंस से एक्सप्लेन कर रहे थे. इट इज़ रियली सीम्स एज इफ द पुअर मैन कि बेचारे सर एंशियस टू इम्पार्ट एवरीथिंग ही न्यू बिफोर ही टुक टू लीव ऑफ अस. सर इस कदर ज़्यादा आज परेशान थे या चाहते थे, मुतजस्सिस थे, एंशियस थे कि वो आज सब कुछ सारा नॉलेज जो है वो हमारे अंदर दाखिल कर दें. डिज़ायर टू स्ट्राइक अ सिंगल ब्लो, उनकी ख्वाहिश थी कि एक ही झटके में, एक ही ब्लो में वो तमाम इल्म जो है वो उनमें डाल दें. दैट माइट ड्राइव ऑल हिज नॉलेज, अपना तमाम नॉलेज इनटू वन हैंड एट वंस, एक ही दम उनके अंदर तमाम नॉलेज जो है वो इनकलकेट कर दें, इंसर्ट कर दें. The lesson was followed by writing. For this occasion, Monsieur Hamel had prepared some copies that were very entirely new, and upon these were written in beautiful round hand, friends alas, friends alas. कहते हैं कि उसके बाद जो अगला सबक हमें पढ़ाया गया या इसके बाद पैरवी की गई जो अगले सबक की वो था राइटिंग का. इस मौका पर सर हैमल जो है उन्होंने ख़ास तौर पर नोटबुक्स तैयार की हुई थी जो हमें दी गई बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग में. उसके ऊपर जो है वो सर ने बहुत खूबसूरत हैंड राइटिंग से फ्रांस अलास फ्रांस अलास लिखा था. These words were as inspiring as the sight of the tiny flags attached to the rod of our desk. कहते हैं कि वो लफ्ज़ जो है वो हमें बहुत महसूर कौन और मुतासर कौन लगते थे और बिल्कुल एक फ्लैग्स की तरह नुमाया होते जिस तरह हमारे डेस्क के साथ छोटे से टाइनी फ्लैग्स लगे हुए थे. It was good to see how each applied to himself and how silent it was. अभी तक जो है मुकम्मल तौर पर खामोशी थी, हर कोई अपना काम कर रहा था. नॉट अ साउंड सेव दैट स्क्रैचिंग ऑफ पेन एंड दे टच्ड आवर पेपर्स. उसने कहा माँ सवाए कि हमारे पेपर पे लिखते हुए जो टच होती है उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं थी. वंस इंडीड सम कॉकशेफर्स एंटर्ड द रूम. कहते हैं कि एक बीटल्स जो थे भंवरे कमरे में दाखिल हुए. बट नो वन पेड द लीस्ट अटेंशन टू देम. किसी ने ही उसको कोई तवज्जो नहीं दी. नॉट इवन द टाइनीस्ट पीपल फॉर द यंगेस्ट. उसने कहा सबसे छोटे जो तालिब इल्म बैठे हुए थे उन्होंने भी कोई तवज्जो नहीं दी. नाउ द पेज नंबर 20 were observed the tracing their straight strokes and as earnestly and conscientiously as they too were written in French. On the roof of the schoolhouse the pigeons were cooing softly, and I thought to myself as I listened, and must they also be compelled to sing German? उसने कहा जी स्कूल में भी बच्चे जो हैं वो सीधी सीधी लाइनें खींच रहे थे और मसरूफ़ थे जैसे वो लाइनें फ्रांसीसी ज़बान में लगा रहे हैं बड़ी संजीदगी के साथ. स्कूल की छत पर उसे आहिस्ता आहिस्ता जो है कबूतरों के गटर करने की आवाज़ आ रही थी. उसे लगा कि कबूतर जो हैं वो आज कंपेल्ड यानी मजबूर किए जा रहे हैं कि वो भी जर्मन ज़बान में गाएं. From time to time, looking upon from my pages, I saw Monsieur Hamel motionless in his chair. कहते मैंने वक्त से वक्त जो है पेजेस को पढ़ते हुए देखते हुए मैंने नज़र उठाकर सर मॉन्सर हैमल की तरफ देखा जो अपनी कुर्सी पर बगैर हरकत किए हुए बिल्कुल स्टिल बैठे हुए थे. His eyes riveted upon each object about him as if he desired to fix his mind and forever every detail of his little school. Remember that for 40 years he had been constantly at his post in that very schoolroom, facing the same playground. Little had changed. The desks and benches were polished and worn through the long use, and the walnut trees in the back playground had grown taller, and the hoop vine he himself had planted curled its tendrils about the windows, running even the roof. वो कहता है कि जो हमारे उस्ताद हैं 40 साल तक मुसलसल इसी स्कूल में इसी कमरे में पढ़ाते रहे. कुछ ज़्यादा तब्दील नहीं हुआ था. तवील इस्तेमाल की वजह से, कांस्टेंट यूज़ की वजह से जो है जो डेस्क हैं वो बार बार रोगन किए गए. खेल के मैदान में सर ने खुद जो है वो फ्रूट के दरख्त लगाए थे जो बहुत बड़े हो गए और अंगूर की बेल भी उन्होंने लगाई थी. उसकी जो शाखें हैं वो खिड़की से होती हुई इर्द गिर्द छत पर पहुँच गई. And himself planted. What anguish must have filled the poor man's heart. कहते हैं क्या दुख है जो हमारे सर के दिल के अंदर जा रहा था. As he thought of leaving all these things, ज़ाहिरी बात जब वो सोच रहे थे कि वो तमाम चीज़ें जो हैं उन्होंने छोड़ देनी हैं.
and heard his sister moving to and fro in the room overhead, busied in fastening their trunks, for on the morrow they were to leave the country. उनकी बहन जो है वो छत पर जो है वो ट्रंकों में उनका सामान समेट रही थी, सामान बांध रही थी, क्योंकि सुबह जो है उन्होंने इस इलाके को छोड़ देना था, नेवर टू रिटर्न, और वापस नहीं आना था. Nevertheless, he courage had not faltered, nor a single lesson was omitted. After writing came history, and then the little ones sang their ba bee bee boo boo together. Old Hauser at the back of the room had put on his spectacles and holding his primer in both hands with spelling out the letters with their little ones. लिखाई के बाद तारीफ की बारी आई. उसने कहा बच्चे जो छोटे थे उन्होंने अपने बेसिक जो है वो गाना शुरू कर दिए. बा बी बू. कमरे के पीछे जो बूढ़ा सर बैठे हुए थे, उन्होंने ऐनक लगाई हुई थी, दोनों हाथों में अपनी एक प्राइमर किताब पकड़ी हुई थी, वो भी बच्चों के साथ पढ़ने में मगन था. He too was absorbed in his task. His voice trembled with emotion. उसकी आवाज़ थोड़ी सी जज्बात की वजह से कांप रही थी. And it was so comical to hear him that he was all wanted to laugh and to cry at the same time. Ah, never shall I forget that last day. उसने कहा मैं कभी भी वो आखिरी दिन नहीं भूल सकता. वो लम्हा था जब हम एक लम्हे को हम हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे. Suddenly the church clock struck 12, and then the Angelus was heard. का अचानक जो है वो 12 बजे की घंटी बजी. और एंगुलस कहते हैं चर्च की घंटियों को जो बजती हैं ठीक 12 बजे प्रेयर्स के लिए. एट द सेम मोमेंट, उसी लम्हे, द ट्रम्पेट ब्लास्ट अंडर आर विडोज अनाउंस दैट द प्रोशन वर रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल. के जो क्रिश्चियंस हैं वो वापस आ रहे हैं अपनी मशकों के बाद. मॉन्सर हैमल रोज इन हिज चेयर. मॉन्सर हैमल जो है वो खड़े हो गए. ही वॉज वेरी पेल. थोड़े से पेल थे. बट नेवर बिफोर हैड सीन टू मी सो टॉल एज दैट मोमेंट. अंडरलाइन कर लीजिए इन लाइन को. जब हम सर हैमल का करैक्टर लिखेंगे तो हम इन लाइन को कोट करेंगे. कहता है बच्चा कहता है कि सर हैमल जो है वो पेल तो थोड़े से लग रहे थे, लेकिन इतने टॉल महसूस हो रहे थे, इससे पहले मुझे कभी टॉल महसूस नहीं हुए. यानी वो रिगार्ड पे कर रहा है. ये बात कद की नहीं है बल्कि उनकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस कर रही है. माई फ्रेंड, ही सैड, माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों. बट समथिंग चॉक्ड हिम. ही कुड नॉट फिनिश हिज सेंटेंस. कुछ गले में उनके पास क्या, वो मतलब सेंटेंस जो है पूरा मुकम्मल नहीं कर सके. एंड गैस्पिंग इट विद ऑल हिज स्ट्रेंथ रोट इन हिज लार्जेस्ट हैंड. उन्हें जो है अपनी पूरी ताकत जमा की, बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने जमला जो है वो रोड इन हिज लार्जेस्ट हैंड. उन्होंने अपने बड़े बड़े हाथों के साथ लीव ला फ्रांस, लिव लॉन्ग फ्रांस लिखा. ही रिमेन स्टैंडिंग एट द बैक बोर्ड. और वो खड़े रहे ब्लैक बोर्ड के पास. हिज हैंड रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल. और अपने हाथों को तख्ता स्याह के साथ लगाए रखा. He did not speak again. उन्होंने दोबारा कुछ नहीं बोले. But a motion of his hand said to us. उन्होंने अपने हाथ की हरकत से इशारे से ही कहा, That is all, you are dismissed. यानी कि तुम सब चले जाओ, सब खत्म हो गया है. मैं बच्चों आखिर में जो सर ने कहा विव ला फ्रांस, ये बहुत ही खूबसूरत बात है. जिस तरह से हम कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, उस तरह से उन्होंने अपनी मुल्की ज़ुबान को जो है वो दुआ दी कि लिव लॉन्ग जिंदाबाद. सबक के ख़त्म होने के इख्ताम पर बच्चों हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे. इसको डिस्कस करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनाएंगे. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बाद इसके 3 से 4 जो हैं वो हम लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे. ओके जी, थैंक्स.